بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں کو نشانہ پہنچانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ پاکستان پرامن ملک، پاک فوج بھی اسی اصول پر کاربند۔ خون کے آخری قطرے تک مادر وطن اور کشمیری بھائیوں کا دفاع کریں گے ISPR۔ کورونا پھر بے قابو، 2165 نئے کیسز، 24 گھنٹے میں مزید 17 افراد جاں بحق، اب تک 7109 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,54,461 شہری متاثر۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,938 تک پہنچ گئی۔ کورونا کی دوسری لہر میں مزید تیزی، طلباء اور اساتذہ کے ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر راولپنڈی کے 5 اسکول اور خواتین کا ایک کالج 21 نومبر تک بند۔ محکمہ تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گلگت بلتستان میں انتخابی دنگل، الیکشن مہم ختم، کل پولنگ ہوگی، تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ 24 میں سے 23 حلقوں میں زور کا جوڑ، نون لیگ، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ گلگت بلتستان میں 9 مخصوص نشستوں پر انتخاب، خواتین کی 6 اور ٹیکنوکریٹس کے لیے 3 نشستیں مختص۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 10,000 سے زائد اہلکار تعینات، سندھ پولیس کے جوان اور افسر بھی پہنچ گئے۔ انتخابی مہم کے دوران صوبہ بدر کرنے کی کوشش کی گئی، آخری جلسے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ نہیں چاہتے انتخابات متنازع ہوں، اگر ایسا ہوا تو اثرات سب پر پڑیں گے، بلاول بھٹو۔ ملک پر نالائق حکومت مسلط، سلیکٹڈ حکمرانوں نے امن داؤ پر لگا دیا، انہیں گھر بھیج کر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، مریم نواز کا مطالبہ۔ ترقی کے دعوے دار بتائیں، کیا خیبر پختونخوا میں ایک بھی اسپتال بنایا؟ لیگی رہنما۔ جمہوری حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کے مشورے، نون لیگی قیادت کی غیر جمہوری ذہنیت کے عکاس، مفاد پرست سیاست کی آڑ لے کر احتساب سے نہیں بچ سکتے، شبلی فراز۔ شہریوں کے لیے کچھ اچھی خبر، 16 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3.5 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان، اوگرا نے تجویز دے دی، اعلان وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ہوگا۔ پاکستان میں دوسرے ہفتے بھی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ ٹویٹ کیا ہے۔ SPI انڈیکس گراوٹ کی خبر دے رہا ہے۔ عمران خان کی جانب سے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ مہنگائی کو مزید قابو میں لائیں گے، اس عزم کا انہوں نے اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بھارت میں مہنگائی سے عوام کو مشکلات کی خبر ٹویٹ کر دی ہے، تو آج وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں دوسرے ہفتے بھی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، SPI انڈیکس گراوٹ کی خبر دے رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ مہنگائی کو مزید قابو میں لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمسائے ملک کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ مہنگائی سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے بھارت میں، تو پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے، جس پر عوام دہائیاں دیتے نظر آئے، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان ٹویٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ہفتے بھی مہنگائی میں کمی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ احتیاط میں غفلت کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، اموات میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں 17 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 7109 ہو گئی، جبکہ مریضوں کی تعداد 3,54,461 تک جا پہنچی۔ 3,22,414 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ احتیاط میں غفلت کا نتیجہ اموات میں اتار چڑھاؤ۔ NCOC کے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 17 اموات ہوئیں، جہاں باحق افراد کی مجموعی تعداد 7109 تک جا پہنچی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2165 نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد مریضوں کی تعداد 3,54,461 تک جا پہنچی۔ NCOC کے مطابق 1,316 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 3,22,414 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,53,873, खैबर पख्तूनख्वा में 41,723, पंजाब में 1,09,309, इस्लामाबाद में 23,500, पाकिस्तान में 16,328 और आज़ाद कश्मीर में 5,261 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,434 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 34,535, जबकि मुल्क भर में 48,81,640 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत पकड़ने लगी है। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली कोरोना वायरस का शिकार हो गए। महमूद खान की अहलिया और बेटे का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। डिप्टी स्पीकर ने अवाम से सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। समीन जान हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। कोरोना की दूसरी लहर में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान जो है ना, उनका रिजल्ट मज़बूत आया है और उनको बाकायदा तौर पे डॉक्टरों की जानिब से हिदायत की गई है कि वो घर पे उनको करंटीना कर लिया गया है। उनके अहलिया को भी, उनके बेटे हैं उनको भी घर में अलग अलग करंटीना कर लिया गया। ताहम उन्होंने, जब मेरी बात डिप्टी स्पीकर से हुई है तो उन्होंने कहा कि आवाम से अपील की गई कि मेरी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं करें। इसी तरह बहुत शुक्रिया समीन जान, आपने अपडेट किया। और अब से तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का, जो कहते हैं कि एहतियात न करने से कोरोना के केसेस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। शरह 7.5% तक जा पहुंची है। मजीद कहा कि बाज़ अफराद ने यह तासुर कायम किया कि कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल गलत है। शहरी मास्क के इस्तेमाल को लाजमी तौर पर अपनाएं और इस पर हर सूरत अमल दरामद कराएं। लोगों ने ये तासुर डेवलप किया कि शायद कोरोना वायरस पाकिस्तान में ख़त्म हो गया और हमने उसको कम्प्लीटली शिकस्त दे दी है। नतीजा ये हुआ कि हमने SOPs को हम भूल गए, मास्क पहनना छोड़ दिया, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा और अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि एक बार फिर केसेस में इजाफा हो रहा है और तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तकरीबन 7.5% शरह है कोरोना वायरस के नए केसेस की, जो डेली बेसिस पर हमारे यहाँ ऐड हो रहे हैं। इसकी एक वजह शायद बदलता हुआ मौसम है, जो सर्दी की एक लहर आई है। मैं समझता हूँ और मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से कि हाँ, हमें बाहर निकलना है, हमें बाकी चीज़ें करनी है, अपने रोज़गार को भी पूरा करना है, लेकिन एहतियात करना हम सब के लिए लाजमी है। और एहतियात करने का जो सबसे आसान तरीका है वो समाजी फासला है और अपने चेहरे पर अपने नाक और मुंह को ढांकना है। सिर्फ यही बुनियादी चीज़ें अगर आप करना शुरू कर दें तो आप अपनी हुकूमत की मदद करेंगे कोरोना वायरस की रोकथाम में, उसके केसेस के फैलाव को रोकने में। आइए अपना साथ दीजिए, अपनी हुकूमत का साथ दीजिए। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। हल्का GBLA 12 में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया है। मजीद बता रहे हैं शिगर से हमारे नुमाइंदा आबिद शिगरी। जी, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात में आज का दिन सिर्फ बाकी रह गया है। कल रात 12 बजे के बाद से इंतखाबी मुहिम चूँकि ख़त्म हो चुकी है। कल इंशाल्लाह सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट होंगे, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल है। हल्का GBLA 12 की बात की जाए तो यहाँ भी तैयारियां मुकम्मल है। पोलिंग अमलों की तरबियत के बाद अशिया की तरसीलात शुरू हो चुका है और अमलों की रवानगी भी जारी है, जो कि आज शाम तक मुतल्लिका स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। ज़िली इंतज़ामिया शिगर की जानिब से कल फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत DC शिगर अजीमुल्लाह, SP शिगर ज़ियाउल्लाह ने क़यादत की, जिसमें मुकामी पुलिस सिक्योरिटी इदारों के अलावा मुल्क के दीगर सूबों से आए हुए पुलिस जवानों ने शिरकत करके अपनी मुकम्मल तैयारियों का मुजाहरा किया। कल के इलेक्शन के हवाले से आवाम में भी काफ़ी जोश और खरोश पाया जाता है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जिताने के लिए पुरज़्म हैं। जी, शिगर से हमारे नुमाइंदा हमें अपडेट कर रहे थे। कल इंतखाब होने जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान में और पोलिंग की तमाम तर तैयारियों को आखिरी मराहिल में दाखिल कर दिया गया है। 23 हल्कों में नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है।
कल इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ था और तीनों जमातों के एक की क़यादत की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। जल्द से जुलूस किए गए, कॉर्नर मीटिंग से भी गहमा गहमी उरूज पर रही और आज इंतखाब की तैयारियों को हतमी मराहिल तक पहुँचा दिया गया है। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग की तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 23 हलकों में कल इंतखाब होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे खालिद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद, बताइएगा किस तरह का आप माहौल देख रहे हैं और इस वक्त क्या तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हलकों में से 13 हलकों में कल पोलिंग डे है और पोलिंग से मुतल्लिक इस वक्त तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और अब से कुछ देर बाद गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला के लिए जो पोलिंग मटेरियल है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो आज रात को तमाम पोलिंग स्टेशन 1160 पोलिंग स्टेशन के अंदर सिक्योरिटी अमले को वहाँ पर तैनात कर दिया गया। और इस वक्त अगर सिक्योरिटी की सूरत के बारे में मैं बताता चलूँ कि 15,900 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो बराह रास्त गिलगित बल्तिस्तान के 1160 पोलिंग स्टेशन में सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस वक्त अगर वोटर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो मौसम बहुत ज़्यादा सर्द है और वोटर्स बहुत ज़्यादा चार्ज है और इलेक्शन की गहमा गहमी बहुत ज़्यादा उरूज पे है। और गुज़िश्ता रात 12 बजे तमाम सियासी और कॉर्नर मीटिंग्स जो इलेक्शन रूल थे उसके मुताबिक वो ख़त्म हो गई हैं। आज बाज़ जो उम्मीदवार हैं वो कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर कैंपेन और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ये पोलिंग के हवाले से लोगों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अगर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौज को भी अलर्ट रखने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, सिक्योरिटी के यहाँ पर सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं, कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। बहुत शुक्रिया।